Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we just started with the Kunti Stuti. So Bhishma Stuti, and with the Bhishma Stuti we have completed the 2 verses of it. First 2 verses we have completed of Bhishma Stuti. So we will just have a fast recap. And the first verse, Bhishma Dev is saying that I want to invest my mind. मेरा मन को मुझे निवेश करना है. Because we invest our money, we invest our youthhood, we invest our time, we invest n number of things. But the mind is never invested. And investing the mind, by the way, mind कभी किसी पे लगा है, किसी चीज पे लगा है, भगवान पे लगा है, कभी चीजों पे लगी है, पैसे पे, वो भी स्थिर नहीं है. The worst part is the mind is never fixed on one thing. एक चीज पे कभी स्थिर होती नहीं है. It keeps on jumping. That is why Lord says in the Bhagavad Gita, चंचलमि मन कृष्ण. Arjuna is saying that चंचल. अभी आप यहाँ बैठे रहेंगे, ये हफ्ता अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे जिंदगी भर खाना ही नहीं खाया. हाँ? Then after eating, ये टाइम अच्छा शॉपिंग करना चाहिए. तो mind is not fixed on one thing. You know, a foodie is good. You know, he focused on food. Whereas generally the mind is fluctuating. Sometimes we go health conscious. सुबह उठ के jogging, एकदम अचानक 1-2 हफ्ता, then the fizz is out, and then we get attached to sleeping. So the mind is never attached, and that is why Lord Bhishma Pita is telling we have to invest in the Lord, on the Lord. So what is the trick I told you that week? कि भगवान पे तो लगने वाला नहीं, तो कम से कम तोते की तरह भगवान का नाम तो chant. At least by that way you are investing your mind on the Lord's name. Otherwise what happens? Always your mind is jumping. Even while chanting, you see your mind is roaming around over the world. हाँ, सबका याद आएगा, आपके दोस्त दुश्मन सब याद आ जाएंगे. किसी ने 10 रुपया 10 साल पहले लिया तो वो भी याद आ जाएगा. बट भगवान याद नहीं आएंगे. The reason is our mind we are not ready to invest. That is the problem. So he thinks, he reading, that is why. And mind means what? 3 things. Prabhupada is very clearly writing: thinking, willing and feeling. Thinking, willing and feeling, that is the job of the mind. Feeling मन में होता है, कहीं भी शरीर में नहीं होता है. That's why when you are physically fit also we say, मन ठीक नहीं है, आज ठीक नहीं लग रहा है. क्यों ठीक नहीं लग रहा है? तुम तो ठीक हो, खाया अच्छा दवा के खाया, फिर भी मन ठीक नहीं. बोलते हैं मन बेचैन है, मन, you know, it's not right. That is because the mind is different than the body. शरीर से अलग है. मन को आप शरीर के साथ जोड़ के मत देखिए. And I want to invest all my mind on this Sri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of devotees, he is always self-satisfied. उसको कोई चीज की कमी नहीं है या कोई जरूरत नहीं है. But since he is a leader of all the devotees, to give transcendental pleasure, उनको आनंद देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं. He comes to this material world just to give fun and pleasure to the devotees. भगवान को कोई जरूरत नहीं है, एक कटोरी छाछ के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है. वो दूध भी उनका ही, वो मटका भी उनका ही. Because he is उपादान कार्य एंड निमित्त कारण एंड उपादान कारण, दोनों वही है. I always explain, अगर टेबल बनाना हो तो हमको लकड़ा लगेगा, फेविकॉल लगेगी, किली लगेगी and all that stuff, and then you need a carpenter. So there are 2 things. A carpenter without wood you cannot make a furniture. Wood without a carpenter you can't make a furniture. But the best part of God is he is both. He is the wood also and he is a carpenter. So that is why, जैसे कुम्हार है, कुम्हार को मट्टी चाहिए, कोई चक्री चाहिए, तब मटका बनेगा. But speciality of God is, कहाँ भगवान ने कौन सा कंपनी में फोन करके मट्टी मंगाया रहेगा धरती बनाने के लिए? 10 ट्रक मट्टी भेज देना. 10 ट्रक में क्या होगा? इतना बड़ा ब्रह्मांड के लिए इतना, मतलब how many billions and trillions. And these, I mean, sorry to say, but scientists give a very vague statement. Oh, this whole universe is just stuck by gravitational force. किस काका ने gravitational force लेके?
Who gave this gravitational force? And we are so excited just because the plane or the astronauts go up and they are dancing in the spacecraft in zero gravity. We are excited. Wow, see what is zero gravity. But just see how God has created. He says in the Bhagavad Gita, I enter into each and every planet. I am holding it in place. Whether you want to say just the planet will stand of its own and for so many billions of years. So that is why Lord does this, just because He wants to give pleasure to His devotees. And then the second verse is mentioned, Tribuna Kamanam Tamala Varnam Ravikara Gaurav Varam Dadane Vapuru Alka Kulavratam Anana Abjam Vijay Sakerathir Astu Mena Vadya. He says, let me invest my mind. मेरे नजर के सामने वो व्यक्ति होने दो जो, he says very nicely, Tribuna Kamanam Tamala Varna. He is having a beautiful bluish color hue. And first and foremost, he is saying he is a Vijay Sakhe. He is a friend of Vijay. Vijay मतलब कौन? अर्जुन. जो वो जहां भी जिसका भी दोस्त बन गया उसका विजय. There is no iota of doubt that आपका victory होगा कि नहीं, because he is already the friend of Arjuna. So Arjuna's victory is guaranteed. So he says he has appeared in this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of tamal tree. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face covered with paintings of sandalwood pulp be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. This is the most star condition of life. भगवान अगर सामने आ गए, पूरा भगवान का वर्णन हो गया और अंत में भगवान एक गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बीवी दे दे, बच्चा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, गए. It is like getting out at 99. 99 का वॉल में क्लीन बोल्ड हो जाना. What is the use? अगर इतना सब करना ही था तो भगवान से इतना डिवोशन करने की जरूरत क्या है, भक्ति करने की जरूरत क्या है? So that is why he says, specifying Lord is covered with sandalwood pulp. You know, भगवान का और सैंडलवुड पल्प का, चंदन के पेस्ट के साथ बहुत पुराना संबंध है. कोई एग्जांपल दे सकते हैं? Yes, very good, perfect. Kubja, very good. Time and again Lord has always said, Kubja को जगह सामने से मांगा, please give me sandalwood paste. And Kubja said, okay. First she said, no, this is for the king. ये राजा के लिए है. राजा मतलब कंस के लिए है. और उसने बोला मुझे दे दोगे तो अच्छा रहेगा. बोला नहीं, शायद you are more correct person to, eligible person to have it, so I will give it to you. And she gave it to Kamsa. She gave it to Krishna. She was not bothered. Kamsa क्या कहेगा? Kamsa कल गुस्सा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी या मार भी देगा. राजा है और वो भी विकेट राजा है, पर फिर भी उसने थोड़ा बहुत भी डरा नहीं उससे. So what you understand? Lord has an old relation with sandalwood paste. So आप लोग भी जब अब चंदन यात्रा भी आती है हमारे यहाँ, समर में आएगी. So आप लोग भी जब भी मौका मिले आपके भगवान के कम से कम अपना forehead, Lord's forehead, you can put massage, nothing like it, the whole body, but massage the body with chandan oil, at least the leg with chandan oil, and the forehead one should apply little bit of sandalwood. इतना ज़्यादा जाता नहीं, 10-5 मिनट घसना पड़ता है. You apply on the forehead, Lord will be very very happy with you. So, and that is also subject to the star condition apply without any fruitive results. भगवान चंदन लगा रही हूँ आपको, मेरा कुछ कर देना, नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ कर रहा. That should not be your goal. So today we take 1.9.34. युधि तुरग रजो विदुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवारी अलंकृतस्य मम निषिद्ध ससररे विविद्यमाना त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा. Says on the battlefield when Krishna attended Arjuna
out of friendship. The flowing hair of Krishna, Lord Krishna turned ashen due to the dust risen by the hoof of the horses. And because of this, or because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Sri Krishna. Again, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं इसमें? मेरा मन कृष्ण में, उस कृष्ण की उस छवि के ऊपर लगने दो. किस छवि पे? जो घोड़ों के पैरों के धूल से, जो युद्ध भूमि में तो धूल का एक भवंडर उठता है, तो पूरा धूल उनके पूरे शरीर में, बाल में, नाइस लॉन्ग हेयर, हाँ, उसमें पूरा मट्टी बैठ गया है. श्रम, द वर्ड यूज्ड इन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुरग, तुरग मीन्स हॉर्स. तुरग रजो विधुम्र विश्वक क्वच लुलित श्रम वार्य अलंकृतस्य. एक अलंकार हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया. कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द डस्ट फॉलिंग. हाउ कैन इट बी ब्यूटिफुल? जस्ट इमेजिन, आप जा रहे हो और आपके ऊपर पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो हाउ इट वुड बी? यू लुक ब्यूटिफुल. बार बार ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है ना, टू बिकम ब्यूटिफुल यू हैव टू बी. जस्ट इमेजिन, लॉर्ड के ऊपर पूरा मट्टी बैठा हुआ है, बालों में पूरा मट्टी है, एंड इट सेड, इट द वर्ड यूज्ड इज कच्च लुलित. कच्च मीन्स हेयर. पूरा हेयर इज गॉन ग्रेइश, ब्राउनिश ग्रेइश हो गया मट्टी से. एंड श्रमवार्य अलंकृतस्य, वो जो श्रम जो किया उन्होंने, जो मेहनत किया, उससे उनका पूरा पसीना छूटा हुआ है. पसीने में वापस मट्टी बैठे. एंड देन मम निशित शरीर, मेरा मारा हुआ बाण. भगवान यहाँ क्या क्या, भीम भीष्म पिता क्या कर रहे हैं? मैंने जो बाण मारे, अर्जुन को मारने के लिए सब बाण अर्जुन तक तो जाएंगे नहीं, कुछ बाण भगवान को भी लग गया है, बस सारथी है वो, तो उनको भी लगे. तो मम निशित शरीर विविद्यमाना, जो उनको प्रिक किया है, वो बाण जो उनको लगे हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा खून भी निकल रहा है. ही इज ब्लीडिंग ऑल्सो लिटिल समवेयर इधर उधर. तो त्वच विलसित क्वचे, एंड इवन इट इज वन मिनट, द आर्मरी विच इज प्रोटेक्टिंग द आर्मरी, उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज किया. दैट्स भीष्म पितामह, द ग्रेट वॉरियर. कृष्ण अस्तु कृष्ण आत्मा, let that be, that Krishna Atma be in my mind. So how can a person in such a dirty form, जिसके ऊपर इतना धूल मट्टी उड़ा हो, इतना खूबसूरत दिख सकता है? Simple one line answer. Lord looks beautiful in all conditions and all circumstances. हमको बाल करना पड़ता है ना? कभी किधर जाना हो तो एकदम से बाल करना. भगवान का एनीथिंग. दैट इज वाई लॉर्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन, ऑल परफेक्ट. इनफैक्ट ब्रज का एक भाव है कि भगवान को इतना श्रृंगार करते हैं. क्यों? ताकि उनकी असली खूबसूरत ढक जाए, उनकी असली खूबसूरत बाहर ना आए. इसके लिए इतना श्रृंगार करते हैं कि एक परत लग जाती है, इधर मेकअप लगा दिया, यहाँ पे पूरा डॉट्स डॉट्स. whenever you go to Vrindavan you see, no, Lord's face is nicely decorated with nice gopi chandan dots, and then pagdi, then venu and all that. इतना सब डाल देते हैं. क्यों डालते हैं? ताकि उनका असली ब्यूटी. It is the opposite in our case. बिना मेकअप का कोई निकले, बच्चा भी पहचानेगा नहीं कि मेरी माँ है. We have to do all this to look, if not attractive, at least presentable. Whereas Lord doesn't have to do anything. That is why you must have never seen one photo of Krishna also with mustache and beard. But I see many people with beard and mustache. अरे कृष्ण का भक्त हो, शाल इधर उधर दुब जाओ, कुछ भी छुप जाओ, छुपने वाले नहीं हो. So try to understand one thing.
Krishna is the epitome of beauty. कृष्ण द शब्द, यही शब्द क्या है? आकर्षण देने वाला. कृष्ण का मतलब जो कर्षण, कर्षण मतलब which attracts, which pulls someone, that is Krishna. So it is said that on the battlefield when I was firing those arrows and Krishna was injured and he was looking missing, beautiful, alankritasya, उनका अलंकार हो गया था. किससे? तुरग, घोड़े की धूल से. He was looking very very beautiful. Why is Bhishma Pitama again trying to? Okay, I'll take the one more verse and then we will discuss. Go to 35, verse number 1.9.35. शपथि सखी वचो निष्मया मध्य निज परयोर बलयोर प्रथम निवेशया सिद्धवती पार्थ सैनिक आयुर अक्षणः हृदयवती पार्थ सखी रतिर ममस्तु. Here Lord is saying, Bhishma Pitama is saying, in obedience to the command of his friend Lord Shri Krishna, entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there he shortened the lifespan of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. So from the first verse, what is Bhishma Pitama saying? मेरा मन उस भगवान पे लगना चाहिए और भगवान के एक गुणों का वो विस्तार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं. तो पहले श्लोक में भगवान पूरा उनका ऊपर धूल मट्टी लगा हुआ है, बाण लगे हुए हैं, इसकी वजह से खून घाव बह रहे हैं, खून बह रहा है, फिर भी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और इस श्लोक में यू शुड गो थ्रू संस्कृत, वेरी नाइस. शपथि सखी बचो निष्मया मध्य. अर्जुन की बात सुनकर, listening to Arjun's words, what did Arjuna do in the Bhagavad Gita? What did he say? First chapter. I don't want to fight. No, that was later. Please take me between. He came to that conclusion after he was brought to that situation. First thing what he said, रथ को लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है वो मेरे साथ लड़ने वाले. Who are there to fight against me? I want to see that. Krishna said, okay, fine. You want to go? I'll take you. I'm driver. आप बोलो ड्राइवर, आगे गाड़ी आगे लो तो गाड़ी लेगा. I have no say. But that, whatever action God does is multitasking. हम लोग सोचते हैं we are doing multitasking. We are actually fools. He does super multitasking. What did he do? उन्होंने रथ आगे लिया दोनों सैनिकों के बीच में, कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में, और बराबर जाके किसके सामने रुकाया? भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के सामने. क्यों? गुरु और ये. अगर दुर्योधन के सामने रुकाता तो हाँ आजा आजा लड़ना है मुझे, है ना, थोड़ा में फिल्मी डायलॉग जैसा, हाँ आजा मैं खून पी जाऊंगा, this and that. But deliberately bought and stood in front of the Bhishma Pitama and the thing, that is in the Kaurav army में भी वो section में जाके and वहां जाके उनके प्रणाम कर रहे हैं. तो दोनों के मध्य, that is why saying बच्चों निष्मया मध्य निज परयो बलयो प्रथम निवेशया, दोनों के बीच में निवेश कर दिया, मतलब रथ को रख दिया. सिद्धवती पार्थ सैनिक आयु पर सैनिक आयु अक्षणः, वहां पे रुकते हुए. पर सैनिक मतलब दुश्मन का सेना. आयु, आयुर मतलब आयु, लाइफ स्पैन, उनका जो जितना भी जीवन बाकी था. आयु अक्षणः हृतवती ले लिया उन्होंने. He had taken away the lifespan of the all the enemies who were standing. उनका आयु कम कर दिया. अभी उनका लाइफ स्पैन और समझे 100 साल था तो उसको वो कर दिया 17 days, 16 days, 15 days. 18 दिन में सब खत्म. 18 दिन में सब खत्म. तो किसी को हाँ तू 12 दिन ले ले, तू 15 दिन ले ले, तू एक ही दिन बस, आज ही तेरा आज 0. So in a categorize wise he has reduced the lifespan of the entire army, enemy army, just by his हृतवती पार्थ सैनिक आयु अक्षणः, सिद्धवती पार्थ सैनिक आयु अक्षणः हृतवती पार्थ सखी रतिर्ममस्तु.
वो कृष्ण मेरे, बिकॉज कृष्णा को तभी भी भीष्म मैंने देखा, सीधी बात है। When he is in the party of Arjuna, अर्जुना का रथ लाके खड़ा किया किसके सामने? भीष्म के सामने। तो भीष्म is seeing so what that is why Bhishma is saying, I am more luckier than Arjuna. I am getting a chance to see Krishna all 18 days, and that is what a pure devotee is. So before we go ahead, I would like to ask one question. What is the exact understanding of a devotee? एक भक्त का क्या है? भक्त की समझ क्या है? Wants to serve the Lord, wants to serve the Lord, very good. Or being attached to the Lord. Or attached to the Lord, very good. The one who always Wants to, or who is serving the Lord? Who wants to? करना चाहता है, करना चाहता तो भक्ति करना चाहिए। जो भक्त है या अपने आप को भक्त कर, he wants to situate himself in devotion, वो व्यक्ति का परिभाषा क्या है? willingness है उसमें, he wants to do it. He's finding the medium. Okay, he is having the willingness, he wants to do it, fine, okay. Something more? Something more? glorifying, trusting. Trusting, very good. और प्रभु जी एक स्टोरी वो आपने बहुत पहले बताई थी एक बार कि वो गए कि वो फाती की वो जो सुई की, हाँ, वो तो विश्वास, भगवान का अस्तित्व पे विश्वास। अस्तित्व पे विश्वास। Okay, fine. Okay, the existence of God is, faith on the existence of God. Yes. Something more. Very good, very nice. These are all right points. Your points are all right. I'm not saying it's wrong. He does Following everything the by path. keeping Lord in the center. Keeping Lord in the center. For He does everything by keeping him in the center. okay, And the way Following the path which is God has said. following the path which God has said. Okay, fine. जैसे विश्व पितामह ने उनको हम्म। क्या दिया, घोड़ी को देखा, जैसे घोड़े की धूल की रज भी लगी हुई है तो भी भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो we should also have that kind of, devotee should have that kind of glorifying रूप Okay. भगवान का, कि जो भी भगवान जैसा भी रूप है उसमें बहुत सुंदर लगता है। Agreed. ठीक है। मुझे लगता है कि भगवान की कृपा बिना भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा मिलेगी कब? जब आपके कर्म अच्छे हों। कर्म। उस हिसाब से तो जितने भी बुरे लोग हैं जो भक्त बने उनको तो कभी मिलना ही नहीं चाहिए थे, शायद ना मिले। पर उनको मिला है ना। But वो उसमें जो पिछले जन्म की कर्म। Why this word कृपा के भरोसे पे हो? हाँ? अगर जब बात पैसे की आती है तब आप बोलते हो मेरे नसीब में रहेगा, तब मिलेगा, आप घर पे बैठे रहते हो, तब निकलते हो ना। Struggle। हाँ, डेली फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट यू स्ट्रगलिंग ना, तो कोशिश कुछ तो कर रहे हो ना। और फिर अगर मेहनत करने के बावजूद ये गारंटी नहीं आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं, कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? You should not ask any fruitive result. That's No. what it is. भगवान, ये सोच ही गलत है कि भगवान को बस कृपा हो जानी चाहिए तो मिलेंगे। कितने लोगों को हम बुलाते हैं, आइए मंदिर आइए, क्लास अटेंड कीजिए, बोले नहीं प्रभु जी बुलावा आया नहीं अभी तक। क्या भगवान फोन करके बोलेंगे? मैं हमेशा पूछता हूँ, होटल से फोन आता है पहुंच जाते हो ना? हाँ, थिएटर से फोन आता है पहुंच जाते हो, मॉल से फोन आता है फिर भी पहुंच जाते हो, कहीं भी आपको कोई बुलाता नहीं फिर भी आप पहुंच जाते हो। सिर्फ भगवान नहीं, उनका बुलावा आएगा। अरे मेरे को भेजा एजेंट बना के, बोल अभी चलो। अबे ठीक है, अभी बड़ा आदमी सीधा तो आएगा नहीं, अब किसी अपने छोटा मोटा नौकर हूं, मैं ही हूं नौकर हूं, इसके लिए हमारा नाम ही दास है। हमारा नाम इसके लिए दास है ना। दास का मतलब क्या? सेवक। हम सेवक है, बोलते आइए आइए। ऐसे हम we are shameless in inviting people. Please come. Where are you? Missing. 4 many classes you are missing. What do we get? We are servants of the Lord. Get the person to the class. That is our job. He should be more and more eager to know about that. Eagerness, very good. ठीक है. No, then I am considering the other fact. चलो, आप लोग सब बोल रहे हो ये सब fact, I mean the prerequisites of getting Lord. I am saying what is the actual definition? I am sure you all must be calling yourself devotees. At least Mr. Rajesh Gopi will be calling himself a devotee along with his wife.
So what do you think is a quality which is that extra bit? Loving, serving Lord, unconditionally. Unconditional loving serving Lord. क्या Devotees happy. सब साइक्लो स्टाइल आंसर्स ना और स्टीरियोटाइप ज़ेरोस्कोपी आंसर्स. Devotee. शरणागति. ओके. Devotees happy. शरणागति हुई तो भक्त बने. आपका मतलब उच्च कोटि का भक्त कैसा बताए? अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर साहब की भाषा में बता. एक मिनट डॉक्टर साहब की भाषा. अभी डॉक्टर साहब, हाउ would you identify, you know, if you have 10 students, doctor students, you know, practicing RMOs, how will you decide that he is a good student or a good doctor? Simple is, if he is able to identify the disease in a minimum test or on the very first shot or at the earliest, the one who, or let's say you are having 10 students and out of that the first who diagnoses the result or the problem very fast is a sick. So that's the quality. So उसी तरह what is the, all doctors, ऐसा नहीं कि वो जो बाकी 9 हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो भी डॉक्टर हैं, but he is a good doctor. So I want to know who is, what is the definition of सब में a, भगवान जिसके पीछे भगवान है, जिस भक्त के पीछे भगवान है, वो जिसको सब में भगवान दिखे, सब जगह और सब में भगवान दिखे. क्योंकि आपने ओके ये भी अग्रीड है, ये भी अग्रीड है. बताई थी आपने वो मक्खन वाली वो जो बताई थी ना आपने वो स्टोरी. अग्रीड चलो वो भी मान लिया. सत्संग में रहे हमेशा. सत्संग में रहे, चलो वो भी मान लिया. चलो Devotee is happy in all the situation. ऑल सिचुएशन. ओके, ये तो कुंती मारने के चेले निकले हैं तो. हाँ बोलिए. प्रभु जी जो खुद तो भक्ति करता ही है और कृष्ण के बारे में सोचती है और दूसरे सोल्स को भी वो सेव करता है बाय लाइक उनके बारे मतलब भगवान की क्वालिटीज के बारे में. You are the closest, but you got the food like this and put it in the ears. You are the closest. चलो इससे क्लू मिल गया. चलो अब देखते हैं कौन स्मार्ट है बोलेगा. सत्संग जो है समबुद्धि ठीक है. Something which is actually making it special. Spreading the बोलो. message of Lord and उसको influence करना और लोगों को कि अपने साथ लेके. ठीक है, that's preaching. That's not, I mean, that's not a quality of a devotee. I'm talking of भक्त की पहचान. इसमें कि this is going to, आज कुछ लोगों के पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी आज क्या है. हाँ बोलो. हाँ. Those who understands the leela of the Lord. Okay, fine. बिना संशय की भक्ति की तरफ. बिना संशय की भक्ति. Okay, very good. See, I'll ask one. चलो. Devotion means what? Love to God, right? Yes, माता जी, बराबर ना? हाँ? आप आपके बच्चे के साथ प्यार करते हैं? नहीं करते? हाँ. शैलेजा माता जी, you love your child, right? She has come today? हाँ. So you love your child? How will you come to know that you love your child? When you take care of the child very nicely and all that, right? That's not the actual way. Always think about Always. That means when the child is not there also, you are aware and thinking about it. That is what is the actual definition of. अगर वो quality अगर है, that means you are actually doing devotion. घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, आप हॉस्पिटल में हो, पेशेंट के साथ हो, नो प्रॉब्लम. आज भगवान ने खाना खाया क्या? आज भगवान को क्या खिलाया मैंने? हाँ ठीक, खाना खिलाया. डाउट आना चाहिए. जैसे मैंने बच्चे को डब्बा दिया कि नहीं, डाउट आता है कि नहीं माँ को? कितनी बार डाउट आती है भगवान को मैंने खाना खिलाया कि? हाउ मेनी टाइम्स आर वी अवेयर? आज मैंने भगवान को क्या भोग लगाया, भगवान को आज मैंने क्या फूल अर्पण किए कि नहीं? दैट कंटिन्यूस. कहते हैं एक पक्षी जो आकाश में उड़ता रहता है और दूर दूर उड़ रहा है, जस्ट टू टेक वन ग्रेन और वन वर्म फॉर द चाइल्ड. छोटा सा पक्षी जो घर पे घोंसले पे बैठा है उसके लिए, उस दूर भले दूर है मगर मन कहां पे है उसका? मन नीचे उस पेड़ के घोंसले पे है, भले वो हवे में उड़ रहा है. दैट इज व्हाट क्वालिटी वी हैव टू डेवलप इन डिवोशन. जो धूल लगाते हैं उसका मतलब रीजन बिकॉज एट द बाद में तो आ जाता है.
Okay, I'm in a different platform. Don't bring me to another platform. Okay. I'll answer your question later. टॉप फ्लोर पे है ground floor पे। So the point is, that is what consciousness should be. That your mind is always in. All the rest of the activities जो कर रहे हो ना, that is वैधीय प्रोसीजर है। भगवान के लिए करना, ये करना, ते करना, वो सब वैधीय प्रोसीजर है। I have put in the core group, I put one message. It's from नारद भक्ति सूत्र, एक श्लोक डाला है, ओपन कर। जो लोग कोर में है, ओपन कीजिए। I'll put it on and offline, na? Yes, I have sent in both the groups. Can anyone open this? And this is one of the sutra given by नारद मुनि। नारद मुनि ये सूत्र मतलब हेडलाइंस होता है, पूरा विवरण नहीं दिया है, सिर्फ 4 शब्दों में बोल दिया है। और उन्होंने क्या बोला है? He says, Narada, however, says that bhakti consists of offering one's every act to the Supreme Lord and feeling extreme distress in forgetting Him. हम लोग को तो extreme happiness मिलता है in forgetting. Extreme happiness, and we call ourselves God, our devotees. Extreme happiness. When you are doing a wrong act, knowing well, that means you are. You're doing a wrong act. You know very well God will not accept this act, and you're doing this act. You will forget. You will not like it. Narada tu tad arpita akhila archata tad vishmane vismarane. That is the most important word. विस्मरण, जिस क्षण आपका भगवान का विस्मरण हो गया, परम व्याकुलस्तः, व्याकुलता होनी चाहिए। वो भी कौन सी व्याकुलता? परम। एंड वेयर इज दैट परम व्याकुलता? हमारे अंदर किधर है? किसके अंदर? भगवान को, लड्डू को बोला कुछ नहीं, आज हम तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। भगवान जी काम कीजिए, आप शरा शक्कर खा लीजिए या किशमिश खा लीजिए या ड्राई फ्रूट खिला दीजिए, बस हो गया। एंड द वर्स्ट वाज टुडे व्हेन आई सी इन वृंदावन ना, लोग टोकरी में भगवान को लेके घूम रहे। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग? टेल मी, व्हाट क्लीनलीनेस आर यू एबल टू मेंटेन? क्या आचरण आप रख सकते हो जो झूठे टेबल में, होटल में बैठ के आप झूठे टेबल में खा रहे हो, वही रखो। आई एम नॉट सेइंग दैट 24 घंटा आप लोग साधु संत बन के घूमो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल ऑल्सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट टू इन गृहस्थास इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहीं ना किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को बिजनेस पे जाना है, ऑफिस टूर्स पे जाना है, बिजनेस टूर्स पे जाना है, इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। बट what is required? That is why Bhishma Pitama is saying again and again, I want to invest my mind. I want to invest my mind. क्यों? जब मन भगवान पे लगेगा तभी तो विस्मरण का व्याकुलता होगा। जस्ट इमेजिन, एक माँ अगर बच्चे के लिए एक टाइम खाना बनाना भूल जाए, कारण कुछ भी हो, हेल्थ इश्यूज हो, फोन आ गया हो, किसी का कुछ आ गया हो, और बच्चा आके खड़ा हो जाए, माँ मेरे लिए खाना, हाउ पिंचिंग दैट मदर विल फील। अपने आप को वो धिक्कार करेगी, अरे मैंने बच्चे के लिए खाना नहीं बनाया, या मैंने बच्चे के लिए कुछ मतलब जो भी कार्य करना था वो नहीं किया। या जस्ट इमेजिन वन मदर फॉरगेट्स टू गो टू द स्कूल टू कलेक्ट द चाइल्ड। इमेजिन दैट सिचुएशन, कैसा रहे मन में, है ना, एक घिन आएगी, अपने आप पे एक धिक्कार आएगा। दैट तरह का फीलिंग जिस दिन आपको भगवान के विस्मरण पे होगा ना, उस दिन आप समझना आप भक्ति में। बाकी तो 500 रुपए में हो जाते हो भक्त, 500-1000 रुपए में आराम से। अच्छा क्वालिटी का भक्त बनना है तो 1000 रुपए में, तो 500 रुपए में हो जाते। दैट्स नॉट भक्ति, दैट्स नॉट आवर डिवोशन। यू शुड फील, व्हेन यू आर सिटिंग एंड गॉसिपिंग विद योर फ्रेंड, दैट टाइम योर माइंड में लगना चाहिए, अरे व्हाट एम आई वेस्टिंग माय टाइम विद दिस इडियट। Rather, I would have chanted the rounds, or I would have read some Bhagavatam or Bhagavad Gita. That feeling should be there. समय व्यर्थ जा रहा है, उस वक्त अगर उस भगवान को विस्मरण करके आप कुछ और कर रहे हो,
then you are not to be qualified as a devotee. This I am not saying. This is Narad Muni saying in his Narad Bhakti Sutra. This is what we have to always, and that is the greatness. हम भगवान को स्मरण, that is the greatness of राधा रानी. हम लोग राधा रानी के बारे में बोलते हैं, क्या समझे हो राधा रानी के बारे में? एक छोटी सी लीला बताता हूं. हम लोग ने हमेशा सुना है उनका दान लीला, दान लेते हैं, मतलब टोल टैक्स लेते हैं ना, दान घाटी में कृष्ण भगवान टोल टैक्स लेते हैं कि नहीं? भाई आ जाओ राधा रानी से और बाकी गोपियों से. तो रोज ही लीला होते होते ना ये लोग बोर हो गए. दिस इज ब्रज का एक के ब्रज में कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं रोज रोज यही लीला, बोर हो गए, पर आज लीला कुछ और करते हैं. तो पहले दिन ही डिसाइडेड. एक्चुअली इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. राधा रानी वो जानबूझ के उसी जगह पे जाएगी जहां पे कृष्ण खड़े हैं, और कृष्ण वहां मांगेंगे, फिर नोक झोंक चलेगी, खींचमतानी चलेगी, मटके टूटेंगे. सो इट इज इट्स नॉट दैट only one sided, it is two sided, both the sides, because who is the epitome of devotion? Radha Rani is the epitome of devotion. तो उस दिन बोल दिया उसने, चलो कल से ना, कल उल्टा लीला है, तुम लोग घाघरा चोली पहन के आओ, हम लोग ग्वाल बाल बन के आएंगे और हमारे मटके तुमको दे देंगे, और तुम घाघरा चोली पहन के मटके लेके तुम लोग जाओगे, और हम लोग आपसे तो दान मांगेंगे, टैक्स मांगेंगे. ठीक है, डन. अगला दिन शुरू सुबह होते ही कृष्ण सर पे एक मटका लेके, एकदम भारी सा मटका, छोटे से कृष्ण है, कोई बड़े जवान तो है नहीं, मतलब 8-10 साल के हैं, और घाघरा पहने हैं और एकदम गजगामिनी स्टाइल में चल रहे हैं. कहीं इधर से पल्लू सरक रही है तो वहां से कुछ सरक रहा है, और बाकी के ग्वाल बालों का भी वही हाल है. ऑल इज ग्वाल बाल्स आर आल्सो इन द सेम सिचुएशन. सब चल रहे हैं, मटका लेके चल रहे हैं, और ये लोग भी ललिता विशाखा सब प्लान्ड है. भाई अभी इसको तो ठीक करना है, इतना रोज हमको सताए, हम इसको आज सताएं. और जैसे ही वो जाने लगे तो जाके कमर में चुटकी ले, वो भी करता था कृष्ण, वही करता था ना, पल्लू को खींचे, हाँ ऐसा कंकड़ मारे मटके के ऊपर. तो कृष्ण एकदम, अभी ही इज इन द रोल ऑफ गोपीस, राधा रानी एंड गोपीस. कृष्णा इज इन द रोल ऑफ राधा रानी, एंड राधा रानी इज इन द रोल ऑफ कृष्णा, एंड ऑल द रिवर्स ऑल्सो. द ग्वाल बाल्स आर इन द रोल ऑफ गोपीस, बिकॉज राधा रानी अकेली होती नहीं है, उसके साथ गोपियां भी होती है, और जितनी गोपियां थी आप वो ग्वाल बाल बने, तो राधा रानी के साथ वो भी खड़े हैं. तो बिफोर दैट पहले दिन, अच्छा जो चेंज ट्विस्ट जो है उसमें व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, वो भी चैलेंज था ना. चैलेंज तो होता है ना, तो भी मजा आता है. बोला हाँ ठीक है, कल हम लोग आपको सताएंगे और आप लोग हमसे बच के भागना है, और बच के ऐसे भागना है कि हमको माखन दही देना नहीं, और हम लोग अगर जीतेंगे, आप लोग अगर आपने हार गए, मतलब आपको हम लोग माखन मिश्री देना है और हम लोग लेके ही छोड़ेंगे. So that is the deal. So like every day Krishna used to loot the Radharani, and Radharani was going to loot Krishna in the opposite forms. तो इतने में कृष्ण बोलने लगे, देखो हम अच्छे घर की लड़कियां हैं, ये स्वभाव अच्छा नहीं है आप लोगों का. कमर में चुटकी लेते हो, पल्लू खींचते हो, हम खानदानी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. आप कौन बोल रहे हैं? कृष्ण. हाँ, कल तो क्या था, बट आज उसको भारी पड़ रहा है. क्यों? सर पे मटका लेके चलना है, और वो भी बिना चप्पल के उन रस्तों में. ये लेडीज लोग तो एवर एक्सपर्ट. तो ये बोले खानदानी क्या बात कर रहे हैं. तो राधा रानी खुश हो गई, देखा तू हमको कितना सता था, आज तुझे हम लोग सताएंगे, आज तो हम लोग माखन खा के रहेंगे, दही पी के रहेंगे हम लोग. तो नहीं हमको वो सब पता नहीं, हमको आपको कर देना पड़ेगा. कर क्यों दे? अरे कर का आपको देना ही पड़ेगा, हम यहाँ खड़े हैं तो आपको कर देना पड़ेगा. यहाँ से जिसमें तुम्हारा पिताजी का है, तुम्हारा दादाजी का है, किसका जगह है? तो कृष्ण क्या करता था, जब भी राधा रानी जाती थी खड़े हो जाता था, और उसका स्टाइल क्या था, एक पैर में खड़ा रहना, और वो जो स्टाफ डंडा जो होता था उसको काक में रख के ऐसा स्टाइल में खड़े हो जाता.
तो बोला कि देखो, तुम मेरे आने के पहले यहाँ से गुजर गई होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेरे आने के बाद तो अब मैं राजा हूं, यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मुझे कर देना ही होगा। वहां पे यहाँ पे भी वही स्टोरी हो रहा है। राधा रानी बोल रही आप मुझको आप कर दो। कृष्ण बोल रहे घर में क्यों दूं, आप कौन हो, मैं आपको क्यों कर दूं? तो राधा रानी बोल मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। ये राजा हो तो राजा वाला जैसा बिहेव तो करो। कृष्ण बोल रहे कि राजा थोड़ी इधर कमर का चुटकी लेता है, कमर में चुटकियां लेगा और ऐसे जबरदस्ती खड़ा रह के मांगेगा, हम नहीं देंगे आपको। ऐसा ऐसा राजा वैसा होना चाहिए। But these gopis, in the form of gopas, troubled him to the core. रोने जैसा हालत हो गया कृष्ण का, सर पे मटका गिर ना जाए, पल्लू सरक रही है, धोती मतलब क्या वो घाघरा सरक रही है, दिस एंड दैट, हालत रोने जैसा हो गया। इतना बुरा हो गया कि राधा रानी सेड ठीक है कर मत देना, जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो कृष्ण क्रॉस करके आगे गए और उसके ग्वाल बाल सब नीचे मटके रखे, ये हम लोग जीत गए, बिना कुछ दिए हम लोग जीत गए, हम लोग एक मतलब आप लोग नहीं ले पाए। और यहाँ उसकी सखियां राधा रानी को बोल रही, कोस रही है, अरे तूने ऐसा क्यों छोड़ दिया, तूने यू हैव लेफ्ट हिम गो। दैट इज व्हाई इट इज सेड राधा रानी इज मोर मर्सीफुल देन, दैट इज व्हाई वृंदावन इट इज राधे राधे, नो कृष्णा कृष्णा। माला भले कृष्ण का फेरो मगर वहां पे, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, शी इज द एपिटोम। एंड उसके अंदर एक ही दुख है, राधा के अंदर एक ही दुख है। क्या दुख है? कृष्ण का विस्मरण न हो। वो एक ही कहानी है उसके जीवन में कि कृष्ण का विस्मरण न हो। एंड माइंड यू, आफ्टर कृष्णा लेफ्ट मथुरा, डिड नॉट कम बैक फॉर 100 years, 100 साल तक नहीं आया। और जब कुरुक्षेत्र में मिले, जब वो आए, कृष्ण उसके पैरों में आके बैठ गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के लिए आए थे ना, उसके पैरों के वहां बैठ गए कृष्ण भगवान। कौन? तभी द्वारकाधीश। ही इज नाउ नो लॉन्गर बाल बाल कृष्ण, ही इज द्वारकाधीश। वो आके उसके चरणों पे बैठे। तब वो बोले, सब लोग एकदम लाइक शॉक्ड। एंड कृष्णा को ललिता और विशाखा लेके गई और उसको अच्छी तरह से कृष्ण जैसा मेकअप किया, नॉट द्वारकाधीश जैसा, विद गोपी डाउट्स एंड ऑल दैट, पगड़ी वगड़ी बांध के उसको लाके बिठाया। तब कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि कुछ तो बोलो राधा रानी, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो राधा रानी बोली मैंने कुछ नहीं, 100 साल हो गए आपसे मुझसे दूर हो गए, मगर एक दिन भी रोई नहीं, मुझे एक ही परमिशन चाहिए, आप रो जाओ। आपने मुझे बोला था रोना मत, मैं आऊंगा, मैंने रोई नहीं, पर आज मुझे रोना है। तब कृष्ण बोलते हैं तू रो देगी तो फिर मेरा बल चला जाएगा। इमीडिएटली राधा रानी से, ऐसा है आपका बल चला जाएगा? तो मैं नहीं रोऊंगी। शी डजंट क्राई। That's why she never cried, because she was never separated from Krishna. She was always with Krishna. And the reason why you are always with Krishna, just by remembering the Lord. सिर्फ भगवान को याद करते हुए रहना है आपको, और कुछ नहीं करना है। भले आपके पास people generally think that we have to serve the Lord in a very opulent manner. एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार ब्रज के पास एक ब्राह्मण था, गरीब था, किंचन था, ज्यादा उसके पास पैसे कुछ थे नहीं, तो बहुत दुखी रहता था। भगवान की खूब सेवा करने की इच्छा थी, मगर कभी सेवा की नहीं, उसने कर नहीं पाया, था ही नहीं उसके पास कुछ, तो करी क्या सेवा? तो भगवान को बोलता था, मन से सेवा करते, भगवान आज मेरे घर पे तो सूखा रोटी है, आप समझ लेना, साथ में मैंने आपको मोतीचूर के लड्डू दिए हैं, मैंने आपको साथ में इमरती दिया है, आप ये सोच लेना, ये सब मेरे पास नहीं है, मगर ये सिर्फ आप सोच के आप ले खा ले। किंचन इतना था, बट रोज भगवान की इतना एक ही इच्छा थी उसकी और उसकी पत्नी की कि किसी दिन हमारे पास पैसे आएंगे तो बहुत बढ़िया 56 भोग रोज खिलाएंगे भगवान को, पर अब हम किंचन है, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान देखे
इसका भाव बहुत खुश है, भगवान वॉज वेरी हैप्पी। तो एक दिन रोज नहाने जाता था नदी के किनारे, तो वहां पे कपड़े उतार के पेड़ के पास रखता था। उस पेड़ में एक भूत रहता था। वो भूत उसको पूछा, अरे महाराज आप दुखी क्यों हैं? बोला नहीं, मैं सेवा करना चाहता हूँ, करता हूँ, जो भी है मेरे ताकत के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, बट मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भगवान की अच्छी सेवा करूं। देख, मुझे पता है यहाँ पे एक कड़ा धन है, यहाँ से कितना दूर गांव में मैंने गाड़ के रखा, वो धन है, वो तू ले ले, बहुत धन है, मतलब ऐसे मटके तंदूक भर भर के सिक्के हैं, सब है, ले ले, मगर तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तूने अभी तक जो भी सेवा की है ना, उसका जो पुण्य अर्जित हुआ वो मुझे देना पड़ेगा। नहीं, उसका पुण्य नहीं दे सकता हूं। मैं काम करता हूँ, आज मुझे धन का पता दे दे, मैं आज ही धन निकाल के आज से 56 भोग चालू कर देता हूँ भगवान के लिए, वो पूरा पुण्य ले ले। तू 56 भोग का जो पुण्य है पूरा ले ले। तू मेरा सेवा जो है भगवान को अच्छा अच्छा सुंदर सोने के हार, क्या बोलते हैं, सिल्क के कपड़े, ये वो सब मैं पहना दूंगा, वो सारे पुण्य तू ले ले। मेरे पहले अकिंचन सेवा मैंने क्या किया है, उसका तो पुण्य लेके क्या करेगा? नहीं नहीं, मुझे उसका पुण्य, अच्छा ठीक है, पूरा पुण्य मत दे, 1 महीने का दे। 1 महीने का भी नहीं दूंगा, मैं 56 भोग का दे रहा हूं। चल 1 हफ्ते का दे, 1 हफ्ते का, 1 दिन का दे दे। भूत के साथ आर्ग्यूमेंट चल, हाँ डील चल। मतलब भूत ने बोला 1 दिन का दे दे, बोला 1 दिन का भी नहीं। तो बोला अच्छा, तो भूत ने बोला लास्ट ऑप्शन, ठीक है, तूने पूरा तेरा जो भी तूने रूखी रोटी खिलाई भगवान को, जो भी पानी पिलाया, सिर्फ ना फल फूल दिया, कुछ नहीं दिया, वो सबका भी छोड़। रोज शाम को तू और तेरी पत्नी दोनों भगवान के सामने कीर्तन करते हुए नाचते हैं। उस नाच का पूरा भी नहीं, उस नाच का 1 राग का पुण्य मुझे दे दे। बोला नहीं दो। बोला क्या क्या देगा फिर? मैं बोला आज मेरे अक्ल में मुझे अक्ल आ गई, मेरी आंख खुल गई। क्या? मुझे अब पता चला तेरा धन तेरे पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। मेरे अकिंचन सेवा में भी भगवान का इतना पुण्य है कि भूत मुझसे मांग रहा है। दैट मीन्स व्हाट? टू सर्व द लॉर्ड डजंट रिक्वायर मच ऑफ ऑपुलेंस। यू जस्ट ऑफर मिल्क, you just offer some fruits, you just offer some dry fruits, no problem, provided you are not having the capacity to do it. अगर आपकी क्षमता है तो ऑफर कीजिए, बढ़िया भोग कीजिए, बढ़िया फल फूल ऑफर कीजिए भगवान को। नहीं है, जो आपकी क्षमता है उससे कीजिए। उससे भी अकिंचन सेवा भी इतना प्रभावशाली है कि भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर ले। That's why Lord says ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रविच्यति तद हम भक्त्या उपार्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। मैं उसको खाऊंगा क्योंकि तू भक्ति से मुझे खिला रहा है। मगर the bottom line of all your devotion is, please remember, you have to always remember. That is why Bhishma Pitamaha is again and again saying रतिर्ममस्तु रति मेरमस्तु मेरे को रति मतलब अट्रैक्शन। मुझे भगवान के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। इसके लिए हमारा पहला भगवान न से, चलो भगवान के नाम के प्रति तो रखो, तोते की तरह बोलते तो रहो। एक ना एक दिन तो वो दिन आएगा जब आपकी रति हो जाएगी। आप तुरंत ना सही, आएगा, कभी तो वो दिन आएगा। बट हम लोग वो दिन आएगा तब आएगा। Because we are not actually, the problem is, our problem is with the mind. We are neither attracted to the material things, neither to the spiritual things. बीच में लटक रहे हैं हम लोग। You ask a material person, एक ड्रंकर्ड को पूछो, हाँ आज कुछ और वाइन पीऊंगा, आज नहीं, आज रम पीऊंगा, आज जिन पीऊंगा, आज ये पीऊंगा, वो पीऊंगा, तो उसमें भी there is no loyalty। नॉनवेज खाने वाला आदमी आज
उड़ता हुआ खाऊंगा, जल में वाला खाऊंगा, चलने वाला खाऊंगा, हाँ कुछ ना कुछ वैरायटी ही वांट्स, मतलब उसमें भी एक तरह का आसक्ति सही नहीं है। तो भगवान का कहाँ आसक्ति है? Our mind is not, it is just roaming around like a fool. That is why Lord is again and sorry Bhishma Pitama is again and again saying, वो कृष्ण के पास मुझे चाहिए। And the earlier verse what Lord said, what Bhishma Pitama said, उनके शरीर में इतने घाव लगे हुए हैं, घाव लगे हुए हैं, भगवान को घाव लग सकते हैं? नहीं लग सकते। फिर भीष्म पिता तो बोल रहे हैं भाई मेरा बाणों से आपको घाव लगा हुआ है, आपके रक्त भी बह रहे हैं, तो इसका समझ में कैसे आएगा? हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? यस, नेपाली माता जी ज्ञान बोलिए। Please remember, Lord is Satchitanand. It is not the blood which is coming out of his body. Don't take it as a raw statement. It is a higher level statement. It is said, sometimes playing with the child or enjoying with the opposite person. Sometimes you may bite that person, but that doesn't mean you're biting it off. It's like a love and affection. So Krishna took it as those bites. Like आप छोटे बच्चे को लेके कभी उसका उंगली मुंह में डाल के खा रहा हूँ, तेरा उंगली खा थोड़ी रहे, just showing it. You're not making sure the child is not getting hurt. Similarly, you have to understand that Krishna was only trying to give the pleasure to Bhishma Pitama. He was not drawing any pleasure, neither was he any pain. उसको भी कुछ दर्द नहीं हो रहा था, कृष्ण को भी दर्द नहीं हो रहा था, वो सिर्फ वो सुख भीष्म पिता को देना चाहते थे कि भाई देखो आपके बाणों से मुझे लग गया। जैसे हम कुछ छोटे बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, कभी कभी कुश्ती खेलते बच्चे के, छोटे बच्चे, और एकदम अपना बच्चा ताकत दिखाता है और आप घूम के गिर जाते हो और बच्चा एकदम खुश होकर आपके ऊपर बैठ जाता है, देखो मैंने तुम्हें गिरा दिया, जाके माँ को भी बोलेगा मैंने पापा को गिरा दिया, हाँ सब लोग हाँ वेरी गुड। भगवान वैसे ही है, उनको कोई हरा नहीं सकता, बट भगवान ऐसे ऐसे को ट्रांसेंडेंटल प्लेजर दे देते। He gives a spiritual pleasure by doing these activities. So all given and said, our bottom line is we have to always fix our mind on Krishna. That is what Bhishma Pitama is trying to do in the last minutes of his life. He is trying to fix his mind on Krishna. And second, fixing the mind means जब भी आप भगवान को विस्मृत करते हो या भूलते हो या उनके बारे में भूल जाते हो, तो आपके अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैं भूल गया। Just imagine, suppose you are going home and you forget take your wife, you leave her in the temple and you go home. Just imagine क्या व्याकुलता होगी। उससे ज्यादा व्याकुलता आपको भगवान के प्रति होनी चाहिए। We cannot, when we don't forget our any relations, our any duties, our any loved ones, how can we ever live life every moment, whatever you do? When you're in the office also, what was God doing now? God must be doing something now. He must be playing, must be eating. Did he have his lunch? Did he have his breakfast? Did he have water? If the weather is very hot, did he put on AC? Is the AC on for him? That type of consciousness should be always there in the mind. That means, yes, you are never forgetting. Secondly, when Arjuna was fighting the war, Krishna had already told him, मुझे याद करते हुए युद्ध लड़ना। तो इसका मतलब क्या है? वो थोड़ी 2-2 मिनट में कृष्ण को देखते रहेगा, मर जाएगा। युद्ध में तो बाण लगेंगे। तब हमेशा मैं एग्जाम्पल वही देता हूं, जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तब ना बच्चे को देखती है ना कुछ कार्य को और देखती है। शी इज जस्ट फोकसिंग एंड कुकिंग द फूड फॉर द चाइल्ड, एंड दैट टू द बेस्ट फूड विच द चाइल्ड लाइक्स, द फेवरेट फूड। एंड दैट टाइम अगर वो बच्चे को देखने जाएगी तो नमक गिर जाएगा ज्यादा या तो मिर्ची गिर जाएगा ज्यादा। परफेक्ट, शी इज कुकिंग विद द परफेक्ट कैलकुलेशन, बट द ओनली फोकस इज माई चाइल्ड शुड बी हैप्पी।
Similarly, whenever you are in some material activity which will make you forget the Lord for some time, it should be the activity should be for the Lord, and that has to be offered to God. The activity, the fruits of that activity has to be offered to the Lord. अगर सक्सेस हुआ वो भी आपका, फेलियर हुआ तो भी वो भी आपका. That is how you have to understand. Okay, this is our like close praise class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.